First of all, first of all, we discuss what is porcelain. Porcelain vitrified pottery with a white, fine-grained body that is usually translucent and distinguished from earthenware, which is porous, opaque, and coarser. ये पोर्सलेन जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं. In China, porcelain is defined as pottery that is resonant when stuck. In the West, it is material that is translucent when held to light. जो होते हैं सेमी ट्रांसमिटेड मटेरियल होते हैं उसे भी कहते हैं. अच्छा जी, how definitions vary. Porcelain can be divided into three main categories: hard paste, soft paste, and bone china. अगर हिस्ट्री की बात करें, porcelain was firstly made in China in a primitive form during the Tang dynasty 618 to 907 and in the form best known in the West during the Yuan dynasty 1279 to 1368. This is true or head paste porcelain was made from pendants or china stone ground to powder and mixed with colin. Colin white china clay इसे colin कहते हैं. हिस्ट्री ऑफ पोर्सलेन. पोर्सलेन में इसमें चाइना पोर्सलेन, जापानीज पोर्सलेन, यूरोपियन पोर्सलेन, रशियन पोर्सलेन एंड मॉडर्न पोर्सलेन आ जाता है. चाइनीज पोर्सलेन में पोर्सलेन वाज इन्वेंटेड इन चाइना. फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना ने ये पोर्सलेन इन्वेंटेड की थी, इसलिए चाइनीज मिट्टी के बर्तन कहा जाता है इन्हें. ओवर a centuries long development period beginning with proto porcelain wares dating from the Shang dynasty. ये सारी हिस्ट्री है जो शुरू में है वो चाइनीज ने ही डेवलप की थी. Eventually porcelain and the expertise required to create it began to spread into other areas of East Asia. जो डेवलप कर ली थी अब वो अपने डिफरेंट एरियाज में इसे स्प्रेड करने लगे. ड्यूरिंग द सॉन्ग dynasty 960 to 1279 artistry and production had reached new heights. वो बुलंदियों तक पहुंच गया उनका कारोबार. अच्छा, जापानीज पोर्सलेन. Although the Japanese elite were keen importers of Chinese porcelain, शुरू में जो है वो जापानीज पोर्सलेन है वो चाइनीज पोर्सलेन ही एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पोर्सलेन बना ली. They were not able to make their own until the arrival of Korean potters. वो जो कोरियन पोर्टर्स जब आए उनसे ताल्लुकात बनाकर फिर उन्होंने अपनी पोर्सलेन बनाई. That were taken captain during the Japanese invasions of Korea. अच्छा जी, सबसे पहले चाइनीज ने बनाई, फिर बाद में जापानीज ने कोरियन की मदद लेकर अपनी शुरू की. 20th सेंचुरीज में जो एक्सपोर्ट्स टू यूरिया बिगेन अराउंड 16 to 60. European porcelain. The exported Chinese porcelain were held in such great esteem in Europe. जो चाइनीज पोर्सलिन थी वो इस कदर जो है वो एक्सपोर्ट होने लगी यूरोप में, दैट इन इंग्लिश चाइना बिकम अ कॉमनली यूज्ड सिनोनिम फॉर द इटालियन ड्राइव्ड पोर्सलिन. सबसे पहले चाइनीज ने ही यूरोपन भेजी और वो बहुत तेजी से एक्सपोर्ट हुई. मार्को पोलो इन 13th century apart from copying Chinese porcelain in finance, the soft paste Medici porcelain in 16th century Florence was the first real European attempt to reproduce it with the little success. बाद में यूरोपियन ने शुरू की और फिर रशियन पोर्सलेन in 1744. द एलिजाबेथ ऑफ रशिया, ये जो रशिया का इंडस्ट्रियल सिटी है इसे कहते हैं एलिजाबेथ, signed in agreement to establish the first porcelain manufactory. Previously it had to be imported. लेकिन ये इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस थी, इन्हीं ने ही रशिया में फैक्ट्री सबसे पहले लगाई. The technology of making white gold was carefully hidden by its reactors.
Peter the Great had tried to reveal the big porcelain secrets. मेरी आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है। जी जी आ रही है साहब भाई, आ रही है, आप प्रेजेंट करें। Modern आप प्रेजेंट करते जाएं, porcelain. आ रही है। जी जी Technical advances enabled the porcelain industry to produce porcelain in large quantity. Today, extensive porcelain making is carried out in the United States, Europe, and Japan. Some notable examples of fine contemporary porcelain are in American, Linux, German, and Japanese. Raw material पे आ जाते हैं. The composition of porcelain is highly variable, but the clay mineral colonate is often a raw material. Other raw material can include feldspar, ball clay, glass, bone ash, and steatite quartz. Patent, uh, and the clay used are often described as big, long, short, depending on their plasticity. Manufacturing process. सबसे पहले क्रशिंग द रॉ मटेरियल. सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल हमने चूज़ करना है, उसके बाद क्रशिंग करनी है. फर्स्ट द रॉ मटेरियल particles are reduced to desired size, which involves use a variety of equipment during several crushing and grinding steps. Primary crushing is done in jaw crusher, which use swinging metals jaw. Second crushing reduces particles to one point 1 inch, point 1 inch, 0.25 centimeter or less in diameter by using mullers, steel tire wheels, or that consist of large rotating cylinders partially filled with steel or ceramic grinding media of spherical shape. Second step है हमारे पास cleaning and mixing. The ingredients साहब are passed through a series of. जी भाई. जी भाई. अस्सलाम साहब भाई. ये रिप्रेजेंट मैंने करना था ना, अभी मैं शुरू करने लगा हूँ, ठीक है जी करें बिस्मिल्लाह करें. जी 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 My name is Muhammad Aslan. Now we will discuss about the manufacturing process of the porcelain. सबसे पहले हमने इसके अंदर कुछ स्टेप्स को देखना है. तो सबसे पहला जो स्टेप है, इसको हम कहते हैं क्रशिंग द रॉ मटेरियल्स. हमने रॉ मटेरियल्स को क्रश करना होता है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर इसको कन्वर्ट करना होता है. इसके लिए कुछ डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं ताकि वो एग्जैक्ट साइज जो है वो हम यूज़ कर सकें, जो हमने फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्सलिन यूज़ करना होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रशिंग द रॉ मटेरियल्स की, तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रॉ मटेरियल्स का होता है. हमने जिस साइज के हमें जो पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, हमने उस साइज को उससे पहले इसको रिड्यूस करना होता है. जैसे अगर हम बात करते हैं तो अभी पहली लाइन पे लिखा हुआ है, फर्स्ट द रॉ मटेरियल्स आर रिड्यूस्ड टू द डिजायर्ड साइज. मतलब हमने उस साइज तक लेके जाना होता है इसको, which involves using a variety of equipment, use different several crushing and grinding steps. मतलब कहने का ये है कि अगर हम उसको क्रश करना चाह रहे हैं तो हम डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं. जैसा कि आगे आ जाती हैं टाइप्स की, जो है प्राइमरी होती है क्रशिंग, इसके बाद होती है सेकेंडरी क्रशिंग होती है. तो जो प्राइमरी क्रशिंग होती है इज डन इन अ जा क्रशर. हमने एक जा क्रशर लगाया होता है. इट्स अ इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ डिजायर्ड साइज. तो हमने इसको डन करना होता है ना जा क्रशर, विच यूज स्विंगिंग मेटल जाज. इसके अंदर मेटल के बने हुए एक जाज होते हैं जिनका काम होता है कि उन्होंने रोटेट करना होता है. ठीक है, जैसे वो रोटेट करती हैं, जैसे जैसे वो रोटेट करते जाते हैं, उनका जो साइज होता है उस कंडीशन तक पहुंच जाता है जो हमें डिजायर्ड होते हैं. तो नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी क्रशिंग रिड्यूसेस पार्टिकल्स टू 0.1 इंचेस एंड 0.25 सेंटीमीटर्स आर लेस इन डायमीटर बाय यूजिंग द मोलर्स. ये स्टील के होते हैं व्हील. मतलब ये है कि व्हील की तरह से एक जो है वो होता है इसका डिवाइस जो घूमता है. ठीक है, और जैसे ये घूमता है तो वो जो पार्टिकल्स जा क्रशर ने जो है वो
कंडेंस किए होते हैं वो फर्दर जो है वो इसको जो है वो करता है कंडेंस, ठीक है, 0.1 इंचेस तक लेके जाता है, 0.25 तक। इसके बाद आता है रैपिडली मूविंग स्टील हैमर होता है, ठीक है, तेजी से हरकत करता हुआ एक हैमर होता है कि जिसने उस पार्टिकल्स को जो है वो मजीद कंडेंस करना होता है और छोटा करना होता है। For this grinding, crafts people use ball mills that consist of large rotating cylinders, partially filled with steel। कहता है हाफ फील्ड जो हैं वो स्टील से हाफ फील्ड हुए होते हैं सिलेंडर्स, जो बड़े पैमाने के ऊपर एक सिलेंडर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसने रोटेट करना होता है। जैसे ही वो रोटेट करता है करते करते उस पॉइंट्स को वो जो है वो आगे फर्दर रिड्यूस कर देता है और इसको एक स्पेसिफिक शेप दे देता है जो हमें रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है क्लीनिंग एंड द मिक्सिंग, ठीक है, हमने उसको साफ करना होता है और हमने उस पार्टिकल्स के साथ उन चीज़ों के साथ स्पेसिफिक मटेरियल्स के साथ इसको जो है वो मिक्सअप करना होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी क्लीनिंग एंड द मिक्सिंग। The ingredients are passed through a series of screens to remove any under or over the size materials। यानी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं ना जब हमने उसको उस साइज तक रिड्यूस करके ले आया होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके कुछ ऊपर और नीचे जो है पार्टिकल्स रह जाते हैं, ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने इसकी जो है वो क्लीनिंग करनी होती है, मतलब हमने साफ करना होता है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो इसकी जो सरफेस होती है वो अमार्फस टाइप की नहीं होती, हमने उसको क्रिस्टलाइन बनाना होता है, मतलब उसकी एक रेगुलर शेप देनी होती है, इस जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, हम ये स्क्रीन्स के ऊपर से गुजारते हैं ताकि इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है जितना हमें डिजाइन चाहिए होता है वो स्पेसिफिक शेप में आ जाए। नेक्स्ट आ जाता है जी स्क्रीन यूजुअली ऑपरेटेड इन अ स्लो पोजीशन, ठीक है, यानी एक डिलवानमा साख्त होती है इसकी जिसके जरिए से हम इसको जो है रोटेट करते हैं। नेक्स्ट आर वाइब्रेटेड मैकेनिकली और इलेक्ट्रोमैकेनिकली टू इम्प्रूव फ्लो, ठीक है, यानी जिस फ्लो के अंदर हमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो चाहिए होते हैं या जो हमें वो बर्तन टाइप होता है उसको हमें चाहिए होता है, उस लिहाज से हमने उसको जो है वो करना होता है कन्वर्ट, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि अगर आपके पास एक क्रिस्टलाइन पार्ट उसका आ जाता है, ठीक है, तो हम जो है वो उसको एक स्पेसिफिक शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही हम उसको स्पेसिफिक शेप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो कन्वर्ट करने के बाद उसका जो पार्ट आता है वो नेक्स्ट आ जाता है जी, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, क्लीनिंग के बाद आ जाता है जी जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट्स को तो फिल्टर करना होता है। मैग्नेटिक फिल्ट्रेशन इज देन यूज्ड टू रिमूव द आयरन फ्रॉम द स्लरीज एज दे वेस्टी फैक्चर ऑफ इंसॉल्युबल मटेरियल्स आर कॉल्ड, ठीक है, मतलब ये है कि हमने जो मटेरियल्स होता है उसको पहले फिल्टर के अंदर से गुजारना होता है ताकि हमारे पास उसकी जो है वो सफाई अच्छे तरीके से हो सके। इसके बाद आ जाता है जी after basque firing the porcelain wares are put through a glazing operation, उसको हमने glazing operations के अंदर से गुजारना होता है which applies the proper coating, जिसकी वजह से एक खास किस्म की हमने कोटिंग करनी होती है। the glaze can be applied by painting, dipping, pouring or spraying, मतलब ये है कि जब हमने ये काम करवाना होता है तो उसको एक स्पेसिफिक जो भी हमें स्ट्रक्चर दिया होता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन हमने उसको जो है वो पेंट करना होता है या हमने उसको डिप करना होता है जिस सॉल्यूशन के अंदर हमें रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद हमने स्प्रे कर देनी होती है। कहता है जी आफ्टर बेस्क्यू फायरिंग द पोर्सलिन वेयर्स आर पुट थ्रू अ ग्लेजिंग ऑपरेशन व्हिच अप्लाइज द प्रॉपर कोटिंग, मतलब ये है कि वो जो पोर्सलिन होता है हम उसको ग्लेजिंग ऑपरेशन से जब गुजार देते हैं तो एक प्रॉपर कोटिंग उसकी आ जाती है। फिर हम उसको भट्टी में रख देते हैं, किलन उससे कहते हैं जी भट्टी को, उसके अंदर हम उसको रख देते हैं। फाइनली वी द वेयर अंडरगोज अ फायरिंग स्टेप इन एन ओवन और अ किलन, जहाँ हम उसको एक ओवन में रख देते हैं या हम किलन में रख देते हैं। अगर बड़े पैमाने पे करना चाह रहे हैं तो हमें उसको जो है वो एक किलन के अंदर रखना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इसकी किलन लगाई होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पोर्सलिन। अरसलान नेक्स्ट आ आप जाता है रोड में जी बैठे हुए हैं? जी मैम, ये असल में ना
रोड पे था, मैं शादी पे आया हुआ था, इस वजह से ये मेरे ग्रुप वाले ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि आपने प्रेजेंट करनी, क्योंकि मैंने तैयार की हुई थी। वो मुझे पीछे बाइक्स की आवाजें आ रही है ना इतनी। जी मैम जी, अंदाज। ऐसे ही है। चले नहीं यार सही ये बहुत बात। बड़ी फिल्म है। करें करें जी मैम। करें। जी मैम। इसके बाद मैम नेक्स्ट आ जाता है जी, मेन फायरिंग पिन से हमने गुजार लिया होता है, तो नेक्स्ट जो इसका आ जाता है, इट्स अ मेन फायरिंग। ठीक है, यानी जो एग्जैक्ट हमें चाहिए होता है सरफेस उसकी, तो उसके लिए हम एक मेन फायर गुजारते हैं, उसको आग में से गुजारते हैं। ठीक है, द ग्लास पीस इज फायर्ड एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1300 डिग्री सी। हमने 1300 डिग्री सी टेम्परेचर रख के ना उसको एक टेम्परेचर में से गुजारना होता है, टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड फाइनर, यानी अच्छे तरीके का, अच्छी क्वालिटी का, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। हमने इसको जो है वो फाइनर पार्टिकल्स के अंदर से गुजारना होता है, ताकि वो अच्छी क्वालिटी का बन जाए और लॉन्ग लास्टिंग हो, काफी देर तक वो चल सके, मजबूत बन जाएगा। फायरिंग यूजिंग फायरवुड इन अ क्लाइंबिंग किलन, कहता है अगर आप इसको किलन में गुजार रहे हैं तो फायरवुड भी यूज कर सकते हैं। टेक सेवरल और वेरी मेनी डेज, कहता है जब हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए ये बहुत से दिनों तक भी हम प्रोसेस को करते रहते हैं, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, ओवरग्लेज एंड एनामेलिंग यानी आउटलाइनिंग, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। द ग्लेज्ड एंड द फायर्ड पीस इज ओवरलेज एनामेल्ड बिकॉज आउटलाइंस इन एनिमल्स आर अप्लाइड आफ्टर ग्लेजिंग एंड मेन फायरिंग, यानी कहता है कि हमने जब उसको मेन फायर में से गुजार लेना होता है ना, तो उसकी आउटलाइंस के लिए, यानी एग्जैक्ट शेप के लिए, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हमने एक लास्ट पे जो लास्ट टच, जैसे अगर हम ओवरऑल कोई चीज बनाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप इसका लास्ट टच जो है वो दें। वो लास्ट टच जो होता है, जो हम उसको एग्जैक्ट अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी आए, तो वो हमने करवानी होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्यूट्यूक इन आर्टिका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी ओवरग्लेज एलिमिंग इन फिलिंग। ठीक है, भरना होता है। आफ्टर आउटलाइनिंग द डिजाइन द पीस इज इन फील्ड, हमने उसको भर देना होता है। द मिक्सेस ऑफ ओवरग्लास एनिमल्स हैव बीन सीक्रेटली हैंडेड डाउन इन इंडिविजुअल पोर्टर फैमिलीज। ठीक है, पोर्टर कहते हैं उसको जो मतलब कह ले, उसका जो बर्तन होता है ना, उसके अंदर जैसे हम ओवरऑल कह लेते हैं कि जैसे इंट्रो बनाने वाला जो होता है ना, एक वो क्या उसे कहते हैं, सांचा, उसके अंदर हमने उसको लेके जाना होता है ताकि वो एग्जैक्ट शेप जो हमें चाहिए वो हम उसको कन्वर्ट कर सकें। फिनिशिंग ऑफ द ओवरग्लेज एनिमल पोर्सलिन क्या होती है? द ओवरग्लेज एनिमल पीस इज फिनिश्ड बाय फायरिंग अगेन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 800 डिग्री सी। लास्ट पे हमने उसको दोबारा से टेम्परेचर देना होता है ताकि उसकी जो है उसे कहते हैं क्वालिटी जो है वो बेहतर हो सके, वो अच्छे जो है वो अच्छी देर तक या लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रह सके, इसलिए हमने उसको दोबारा से उसी जो है वो टेम्परेचर में से गुजारना होता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे एक पोर्सलिन की प्रिपरेशंस के लिए जो हमने परफॉर्म किए हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्सलिन। ठीक है, ओके मैम। चलें जी, ठीक हो गया। ये आप 2 लोगों ने आज प्रेजेंट किया है। आपके ग्रुप में कोई तीसरा बंदा भी था जिसने आज प्रेजेंट करना था? जी मैम, बिलाल अकबर ने प्रेजेंट करना था, लेकिन वो अभी ना उसकी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से नहीं आ सका ग्रुप में। चलें ठीक है, वो नेक्स्ट कर लेंगे प्रेजेंट। अभी फिलहाल आज का आप लोगों का मैं लेक्चर, अभी ये मीटिंग जो है वो ख़त्म करती हूँ, इसको 2 लोग भी प्रेजेंट कर दें, एनफ है। ठीक है मैम। अच्छा, दूसरी एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि पहले जो प्रेजेंट कर रहे थे सैफ, और इसके बाद अरसलान आए और लेवल ऑफ एनर्जी देखें कि जैसे ही आप पहले प्रेजेंटेशन सुन रहे थे, मैंने प्रेजेंटेशन जैसे स्टार्ट हुई है मैंने उसको सुनना शुरू किया है, इसके बाद मैं वो बिल्कुल एक कैजुअल सी प्रेजेंटेशन लग रही थी, सैफ जैसे प्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अरसलान ने कहा कि मैंने यहाँ से करना था और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया। एनर्जी लेवल चेक करें कि वो जिस तरह से एक एक लाइन को 3-3 दफ़ा से रिपीट करके और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी रोड के ऊपर बैठ के ना, मतलब सिचुएशन अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। इतनी लंबी बात मेरा करने का मकसद ये है
जैसे ये आए ना, मैं अटेंटिव हो गई और मैंने प्रेजेंटेशन पे फोकस करना शुरू कर दिया। अच्छा, होता क्या है, जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जो आप प्रेजेंटर होता है उसका एनर्जी लेवल बहुत मैटर करता है। आप दूसरे जो सुनने वाले हैं ना उनको मुतवज्जा करते हैं, बार बार एक एक चीज को 10-10 दफा तरीके से समझा के थोड़ा एनर्जी लेके आके अपने उसमें। अब अगर आप खुद ही थोड़े रिलैक्स होके प्रेजेंट कर रहे हैं और सिर्फ खुद ही सुस्त हैं तो सुनने वाले आपसे पहले सो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज थी। बाकी कल किन लोगों ने प्रेजेंट करना है? मैम देख लें अगर इन ग्रुप में से कोई रहता है तो इसका कर लेंगे, बस तो ठीक है, कल बाकी जो बिलाल से कह दें, कल वो प्रिपेयर करके आ जाए, कल की एक प्रेजेंटेशन उनकी रख लेते हैं बस। ठीक है, ठीक हो गया मैम। बिलाल को कह दें कि वो कर दें कल प्रेजेंट। चलें ठीक है। जी और मैम। ये मैंने देखा, आपने देखा होगा कि मैंने ना एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आप लोगों का 30 लोग जब बैठे हुए थे क्लास इसमें मीटिंग में, तो मैंने वो लिया है और उसको मैंने मॉर्निंग में सेंड किया। मॉर्निंग के जो जितनी प्रेजेंटेशन चल रही है ना उनमें सिर्फ 20 लोग आ रहे हैं, मेरे ख्याल 15, बल्कि आज तो 12-13 लोग बैठे हुए थे। जी मैम। तो मैम उन लोगों को अटेंडेंस चैट दिखाने के बॉक्स में लिए लगा मैंने ये दिए। सेंड किया है कि आप लोग जो देखें 30 लोग आज बैठे हुए हैं आपकी इसमें इवनिंग में। अच्छी बात है ना। मैम अटेंडेंस हमने चैट बॉक्स में मैम लगा दिए, मैसेज कर दिए। मैम ने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं, ये तो पहले कोई भी नहीं मान रहा था मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, सारे देखें, बिखरे हुए थे। इसमें जो है सीआर का रोल है। यही तो मैं आपसे यही बात कर रही हूँ। वहां पे भी तो सीआर उनकी क्लास में भी तो है ना, वो भी काफी मेहनत करते हैं। बात तो यही है कि इंटरेस्ट है ना स्टूडेंट्स का, तो जी मैम। आया करो, बैठा करो। और इस तरह से ना सुनने वाले को भी, प्रेजेंट करने वाले को भी मजा आता है कि यार कुछ लोग बैठे हुए हैं, मेरी वजह से बैठे हुए हैं सुनने के लिए। चलें ठीक है, इसको करते हैं अभी खत्म। गर्ल्स यार, कोई चूं चरां, कोई आवाज नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। गर्ल्स यस मैम। आज भी मैम हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यस मैम, उनकी अच्छी है, काफी अच्छी हमें जी प्रेजेंट किया है। उन्होंने इतना अच्छे से प्रेजेंट किया ना कि सारी समझ आ गई है, इसलिए चल क्वेश्चनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। चलें प्रेजेंट बहुत अच्छा किया है वाकई। चलें मैम सही। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि जो पहले सिचुएशन थी ना, वो हाँ लग रहा था कि किसी ने भी नहीं करना। हाँ, होता है ना कभी, वो उन्होंने उस सिचुएशन में भी अच्छा प्रेजेंट कर दिया वहां बैठ के। चलें ठीक है, इसको करते हैं अभी खत्म। और इंशाल्लाह फिर बिलाल तो जो है वो कल प्रेजेंट करेंगे। आप लोग इसी तरीके से सारे के सारे क्लास आना, ये ना हो कि वही 10 मैंने आज आप लोगों की तारीफ की है, कल आप फिर 15 हो जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं अगर होना चाहिए। बिलाल ही ना आया कल तो फिर बिलाल ना आया तो फिर मुझे एडवांस में बता दीजिएगा। ठीक है मैम, ओके मैम। ठीक है, कल छुट्टी है। नहीं नहीं, आपकी सैटरडे छुट्टी कर दें संडे, इनका कल। नहीं कल सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी नहीं है, ये मैंने पहले बताया हुआ है। अच्छा चले, आपके लिए है, कल के लिए ये छूट दे सकती हूँ मैं कि कोई एक बंदा प्रेजेंट कर दे और ज्यादा लोग बेशक ना आए, जिसने आना है वो आए, जिसने नहीं आना बेशक 5 लोग बैठे हों 6, आप लोगों के लिए कल की ये छूट मैं संडे की कर देती हूँ। ठीक है, कल ठीक है मस्त मैम। नहीं है। ठीक है मैम ओके कल मैम। बिलाल प्रेजेंट करेगा, वो कह रहा था मुझे काम पड़ गया, मैं कल करूंगा। ठीक है ठीक है, ओके।